Hello students. In the last Google Meet, what we have discussed that you are getting problem or you are not understanding how to determine the empirical formula. Empirical formula of a given compound. Okay, so here I have taken another one example to solve this numerical. Okay, which is asked for 4 marks in annual exam. So this is 4 mark question in the annual exam. Okay, so understand it very carefully. Okay, learn it carefully. Okay, so as you are capable to solve the numerical. So what they ask, they will give the percentage composition. So here I have taken one of the example. An organic salt gave following percentage composition. Okay, and they have given the percentage composition. Na is equal to 29.11, S is equal to 40.51, oxygen O is equal to 30.38. Calculate the empirical formula of salt. This is the question. Okay, to solve this question we have to follow different steps as we discussed before. Okay, what we do, we convert this percentage composition into mass directly. Mass. Okay, so here I have taken one of the table to solve the same numerical. What I have taken. Okay, so this table consists different column. In the first column I have written elements. Okay, elements which are present in the given numerical. In the given numerical, then symbol. Okay, symbol of each element which is present in the given compound. Then percentage of element, percentage composition which is given in the numerical. Okay, I have taken the values. Then atomic mass of each individual element. Then number of moles. Okay, then number of moles. Then simplest ratio and the simplest whole number ratio. And finally, we are going to what? Write the empirical formula. Okay, so first step as per our textbook, the first step is convert this percentage composition into gram. I have taken percentage composition directly. Okay, percentage composition directly. And then in second step, what it is, calculate the number of moles. Calculate the number of moles. So here they have given Na, S and O. Na means sodium. So name of element we have written sodium. S means sulfur. Okay, I have written that. O means oxygen. Okay, then I have written symbol of each element. Sodium means Na, S means sulfur, O means oxygen, and the percentage composition of sodium Na is 29.11, S it is 40.51, O it is 30.38. Okay, now I have written the atomic masses of each. Atomic masses of each element. Sodium it has 23, sulfur it has 32, oxygen it has 60. Okay, now we will calculate the number of moles. Number of moles. What is the formula for number of moles? Okay, mass divided by atomic mass. Mass divided by atomic mass. So mass here it is. Okay, for example, this one is x, this one is y. So what will be our formula? X divided by y. X divided by y. Okay, now we will calculate for this 29.11 divided by 23. Okay, then 40.51 divided by 32 and 30.38 divided by 16. Divided by 16. So this will become 1.266. This is also 1.266 and this is 1.89. 1.89. So you calculate on the calculator, check out the quantities. Okay, so 29.11 divided by 23, this will become 1.266. 40.51 divided by 32.
So what is 29.11? This is mass of sodium. This is what? Mass of sodium. Mass. What is atomic mass? 23. Mass divided by atomic mass. So 29.11 divided by 23. Then 40.51. This is the mass of sulfur divided by atomic mass 32. Okay, 30.38. This is the mass of oxygen divided by its atomic mass, that is 16. We will get this value. These are what? Number of moles. Okay. Then next step, what we say? Okay, we say that in the next step, okay, divide by the smallest value. Divide by the smallest value from the number of moles to each value. Okay, to each value. So we will calculate the simplest ratio. So here the smallest value from these three, okay, to 1.266, 1.266, 1.89. From these three, the smallest one is 1.266. So we will divide by this 1.266 to each and every one. So this is 1.266 divided by 1.266. 1.266 divided by 1.266 and 1.89 divided by 1.266. Okay, this is equal to 1. Okay, 1.266 divided by 1.266, it is 1. Okay, this is also what? 1, and this is 1.5. How much it is? 1.5. Clear? Now what we have? We have 1 and 1.5. But we require this value in the whole number. We require the values of individual. The ratio of individual elements should be whole number ratio, because empirical formula is nothing but the simplest whole number ratio of different element present in the compound. So we require whole number ratio. So simplest whole number ratio to determine the simplest whole number ratio. Now what we are going to do? We have to multiply this value by the simplest figure or a figure to convert it into what? Whole number. Now if you look at the number, this is 1, this is whole, this is whole, this is not a whole number. Okay, so it is a fraction. So if we multiply this 1.5 by 2, okay, how much it is? It is 2. This will become 3. This will become 3. Now this will become what? Whole number. So we have to multiply each and every number by 2 so as to get the simplest whole number ratio. So multiply with 2. 1 into 2 is equal to 2. 1 into 2 is equal to 2. And 1.5 into 2 is equal to 3. Okay, is equal to 3. Now as per the fourth step, okay, what we are going to write? We are going to write the empirical formula. Now what is the ratio? The ratio is Na/S/O. And what is the ratio? 2:3. Okay, 2:3. Okay, now we can write the empirical formula as Na. How many atoms are there? There are 2 atoms for Na. So this is as a subscript. 2 as a subscript. Then yes, how many atoms are there? This is 2. Okay, and oxygen, this is what? 3. Okay, this is what? 3. So hope you have understood each and everything. Okay, once again I explain. Okay, तो देखो क्या कर रहे हैं हम लोग? Okay, हम डिटरमाइन कर रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. Okay, क्या कर रहे हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमिनेशन कर रहे हैं, जिसके ऊपर के जिसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है एनुअल एग्जाम में 4 मार्क्स का. Okay, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर एक साल के क्वेश्चन पेपर में रहता ही रहता है. ओके, तो क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमिनेशन? तो हमने सीखा है कि देयर आर 4 स्टेप्स. कितने स्टेप्स हमने स्टडी किए? 4
4 स्टेप स्टडी किए। फर्स्ट के क्या कर रहे हैं कि जो कुछ भी कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन दिया है उसको क्या करो, ग्राम में कन्वर्ट करो, ग्राम में कन्वर्ट करो। उसके बाद में क्या करने का है कि वो ग्राम का जो वैल्यू आपको मिल रहा है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो, और नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद जो कुछ नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू मिलेगी, जितने भी सारे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू मिलेगी उसमें से छोटा फिगर देखो कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है देखो के, और उस छोटे नंबर से क्या करो, सभी नंबर ऑफ मोल के वैल्यू को डिवाइड करो, सभी के सभी नंबर ऑफ मोल के वैल्यू को डिवाइड करो, आपको एक रेशियो मिलेगा। ओके, अभी जो रेशियो मिला है वो उसको चेक करो कि वो कैसा रेशियो है। ओके, वो फ्रैक्शन में है या होल नंबर में है। अगर वो होल नंबर में है तो वही आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रहेगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड रहेगा, बराबर है। अगर वो आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, ओके, अगर आपका वो रेशियो जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है तो उस फ्रैक्शन को क्या करो, होल नंबर में कन्वर्ट करो। और होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करने का है, कोई भी एक नंबर चूज करके, ओके, रैंडमली, कोई भी रैंडमली मतलब क्या, वो ऐसा नंबर चाहिए जिसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद सभी आपके फ्रैक्शन क्या होने चाहिए, होल नंबर में कन्वर्ट होने चाहिए। ओके, और उस रेशियो को फाइनली जो होल नंबर रेशियो मिलेगा उस रेशियो को हम क्या करते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट जो कंपाउंड में दिया गया है उसका सबस्क्रिप्ट करके लिखते हैं, उसका सबस्क्रिप्ट करके क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इधर मैंने एक सिंपल मेथड आपको गूगल मीट में मैं बताया था कि मैं एक वीडियो इसके रिलेटेड बनाऊंगा, ओके, और आपको सेंड करूंगा। एक्चुअली ये प्लान था मंडे को, ये वीडियो मंडे को आना चाहिए था, लेकिन गांधी जयंती के हॉलिडे की वजह से फ्राइडे का वीडियो जो है वो मैंने शिफ्ट कर दिया है मंडे के लिए, और ये अभी वीडियो जो है वो क्या है, वेडनेसडे को आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने क्या क्या किया है देखो, ओके, अभी एक टेबल बनाया है, इसमें कितने कॉलम, डिफरेंट कॉलम बनाए हैं, उसमें क्या है, फर्स्ट में मैंने लिखा है एलिमेंट, ओके, दूसरे कॉलम में मैंने सिंबल, एलिमेंट का सिंबल लिया है, उसके बाद में उसका परसेंटेज कंपोजिशन लिया है, ओके, परसेंटेज कंपोजिशन लिया है, उसके बाद में एटॉमिक मास लिखा है, इंडिविजुअल एलिमेंट का क्या किया है, एटॉमिक मास लिखा है। उसके बाद में मैंने सेकंड स्टेप का जो आपका ये है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को लिखा है, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अभी इधर भी नंबर ऑफ मोल्स जो आप कैलकुलेट करने वाले हैं वो एलिमेंट के करने वाले हैं। ओके, तो एलिमेंट के लिए फार्मूला हमारा क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। फार्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास है, तो वो फार्मूला लिखा है। उसके बाद में सिंपलेस्ट रेशियो करके लिखा है, और बाद में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो करके एक कॉलम बनाया है। ओके, तो अभी जो न्यूमेरिकल हमने लिया है इसके लिए प्रॉब्लम जो सॉल्व करने के लिए लिया है वो प्रॉब्लम कैसा है देखो, एन ऑर्गेनिक सॉल्ट गिव फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, एंड उसमें उन्होंने वैल्यूज दिए हैं, Na इज इक्वल टू 29.11, S इज इक्वल टू 40.51, O इज इक्वल टू 30.38। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर सॉल्ट, ऐसा क्या है, क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अभी हमने डिफरेंट एलिमेंट जो भी कुछ प्रेजेंट है, अभी इधर सिंबल दिए हैं तो सिंबल हमने ले लिए Na, S और O। Na मींस क्या है, सोडियम है, S मींस सल्फर है, और O मींस ऑक्सीजन है, तो हमने उसके नाम भी लिखे। उसके बाद में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, अभी सोडियम के आगे कितना दिया है, 29.11 दिया है, सल्फर के आगे क्या है, 40.51 है, ऑक्सीजन के आगे कितना दिया है, 30.38 दिया है, तो उसको लिया है, वही परसेंटेज कंपोजिशन जैसा था वैसा ही लिख के लिया है, ओनली इस परसेंटेज का सिंबल हमने इधर नहीं लिखा है। उसके बाद में क्या लिखा है, उसके बाद में एक कॉलम बनाया है एटॉमिक मास करके, ओके, एटॉमिक मास करके, तो मैंने इधर ये कॉलम में फिट होने के लिए 80 लिखा था, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, एटॉमिक
लिया हमने। सल्फर का कितना है 32 है, ऑक्सीजन कितना है 60 है, सॉरी 16 है। तो ये 16, 32 और 23 ये वैल्यू हमने लिख के लिए। अभी क्या करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मास गिवन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया था, इस कॉलम को x किया है, इस कॉलम को y करके नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाय y बन जाएगा, x डिवाइडेड बाय y बन जाएगा। या फिर क्या करो, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब वैसे क्या है, कैलकुलेशन किया है 29.11 डिवाइडेड बाय 23, नाउ कितना आया है 1.266, 40.51 डिवाइडेड बाय 32 1.266, 30.38 डिवाइडेड बाय 16 1.89। ये क्वांटिटीज हमें क्या मिली, नंबर ऑफ मोल्स की क्वांटिटीज। ओके, तो सोडियम का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1.26, सल्फर का कितना है 1.26, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1.89। अभी ये जो क्वांटिटीज मुझे नंबर ऑफ मोल्स के तीन वैल्यू मिले हैं, ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूं मैं, इन तीन वैल्यू में से, ये जो तीन वैल्यूज मुझे मिले हैं, इस तीन वैल्यू में से जो छोटा वैल्यू है, जो सबसे छोटा है, उस छोटे वैल्यू से क्या करने का है, इस सबको डिवाइड कर देना है। ओके, अभी वो छोटा वैल्यू हम इस तीनों में से क्या करने वाले हैं, डिसाइड करने वाले हैं। तो देखो इस एग्जांपल में ये दो वैल्यू सेम है, ओके, और ये तीसरा डिफरेंट वैल्यू है, ये दोनों सेम है, ये तीसरी डिफरेंट है। अभी इन दोनों में छोटा कौन सा है, तो नो डाउट कोई भी बता देगा कि 1.266 सबसे छोटा है, स्मॉल वैल्यू है, ओके, किससे 1.89 से। तो अभी ये छोटी है, तो इस छोटी वैल्यू से हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी वैल्यू को, मोल वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमने सिंपलेस्ट रेशियो करके जो कॉलम बनाया है, ओके, सिंपलेस्ट रेशियो करके जो कॉलम बनाया है, उसमें क्या करेंगे हम 1.266 डिवाइडेड बाय 1.266, 1.266 डिवाइडेड बाय 1.266 एंड 1.89 डिवाइडेड बाय 1.266। ये क्या कर लिया हमने, सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए छोटे जो वैल्यू है नंबर ऑफ मोल की, उसको उससे क्या किया, सब वैल्यूज को डिवाइड कर लिया। तो अभी 1.266 डिवाइडेड बाय 1.266 1 आया, इधर भी वो 1 आएगा, 1.89 डिवाइडेड बाय 1.266 कितना आएगा 1.5 आएगा। दिस इज आवर सिंपलेस्ट रेशियो, दिस इज व्हाट सिंपलेस्ट रेशियो। लेकिन अभी ये जो सिंपलेस्ट रेशियो मुझे मिला है, उसमें क्या है, दो वैल्यू जो है क्या है, होल नंबर है, तीसरी जो है वो होल नंबर नहीं है, वो फ्रैक्शन में आ रही है, 1.5 करके आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन की वैल्यू को मुझे होल नंबर में कन्वर्ट करने का है, होल नंबर में कन्वर्ट करने का है। तो देखो इसको मैं अगर होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो सिंपलेस्ट क्या है कि 1.5 into 2 करो, ओके, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नहीं सर ऐसे क्यों करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 1.5 into 4 करेंगे, 6 हो जाएगा, ओके, ठीक है। लेकिन इधर आपका वापस ऊपर का भी नंबर क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, और आपको क्या करने का है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने का है। तो आपको वापस उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या है कि इट इज नथिंग बट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ओके। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए, छोटा से छोटा होल नंबर रेशियो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। अभी इधर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऊपर के वैल्यूज को भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 into 2 2, 1 into 2 करेंगे। अभी आपको क्या मिला, आपको एक रेशियो मिला है, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिला है। वो रेशियो किसका है, वो रेशियो इसका है, सोडियम is to sulfur is to oxygen, so Na is to sulfur is to oxygen, okay। और रेशियो क्या है आपको मिला हुआ, 2:3 है, बराबर है, 2:3 है। अभी यही जो नंबर का रेशियो है, उसको हम क्या करेंगे,
एम्पिरिकल फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे, और एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते टाइम हम क्या करते हैं कि सिंबल लिखते हैं, एलिमेंट का सिंबल, उसके बाद जो होल नंबर रेशियो में जो नंबर आया है वो एज अ सबस्क्रिप्ट करके लिखेंगे। ओके, तो ये नहीं लिखेगा, और होल नंबर रेशियो का जो नंबर है वो 2 है तो उसको हमने 2 लिख लिया। उसके बाद में सल्फर, इधर रेशियो में सल्फर है तो उसको यस करके सिंबल लिख लिया, और रेशियो का जो नंबर है उसको सब्स्टिट्यूट करके नीचे 2 लिख दिया। ऑक्सीजन लिखा है, ओके, उसके बाद में जो रेशियो में नंबर है 3 उसको एज अ सब्स्टिट्यूट लिख दिया। बराबर है? तो ये है मेथड टू सॉल्व द व्हाट क्वेश्चन रिलेटेड टू एम्पिरिकल फार्मूला, रिलेटेड टू व्हाट एम्पिरिकल फार्मूला। अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि ओनली एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिनेशन करने के लिए बोला है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ओनली एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर रहे हैं। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला बता देते तो हम इससे आगे चले जाते हैं, और उसके लिए हमें चाहिए मॉलिक्यूलर मास की जरूरत है, मॉलिक्यूलर मास की जरूरत है। अभी इसके रिलेटेड एक और फार्मूला सॉल्व करेंगे ताकि एम्पिरिकल फार्मूला में कोई भी डाउट ना रहे। ओके, मैं लिख के लेता हूं, तब तक के लिए वीडियो पॉज करता हूं। ओके, तो एक और एक क्वेश्चन मैंने लिया है। ओके, देयर इज अनदर वन न्यूमेरिकल, एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन गिव फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, calculate empirical formula. So what they have given? They have given the percentage of nitrogen, that is 25.94, and the percentage of oxygen, that is 74.06. ये वैल्यूज हमें दिए गए हैं न्यूमेरिकल में, और उससे के ऊपर से हमें क्या बोला गया है कि एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करो। ओके, तो 2 ही है, एलिमेंट कितने हैं, 2 है, तो एलिमेंट के नाम लिख के लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड करके बोला है। ओके, तो एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। सिंबल तो हमें दिए हैं एम और ओ करके दिया है, परसेंटेज भी दिया है, इसका है 25.94 और इसका क्या दिया है 74.06 करके दिया है। एटॉमिक मास जो है नाइट्रोजन का 14 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, और ऑक्सीजन 16 है। अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा है कि ऑक्सीजन का कितना है 16 है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। एटॉमिक मास को क्या करने का है, यूज करने का है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हो। ओके, तो क्या हो जाएगा ये 25.94 डिवाइडेड बाय 14 और 74.06 डिवाइडेड बाय 60। ये जो भी वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, आपकी नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू रहेगी। ओके, तो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये फर्स्ट जो है वो क्या आएगा 1.85 आएगा, 1.85 आएगा, और ये दूसरा जो है वो 4.62 आएगा, 62 आएगा। अभी हमें क्या करने का है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या करने का है, डिटरमाइन करने का है। नंबर ऑफ मोल के वैल्यू जो मिले हैं 2 ही वैल्यू है, इसमें से छोटा वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करो, छोटे वैल्यू को क्या करो सिलेक्ट करो, और उस छोटे वैल्यू से क्या करने का है आपको ईच वैल्यू को डिवाइड करने का है। अभी 1.86 और 1.85 और 4.6 में 1.8 ही छोटी वैल्यू है। ओके, तो इसको क्या करेंगे 1.85 डिवाइडेड बाय 1.85 एंड 4.62 डिवाइडेड बाय 1.85 डिवाइड बाय, तो इसको क्या मिलेगा 1.85 डिवाइडेड बाय 1.85 क्या होगा 1 आ जाएगा, बराबर है। ये कितना आएगा 1 आएगा। दूसरी क्या है 4.62 डिवाइडेड बाय 1.86, सो दिस विल बी 2.5 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अभी ये 2.5 और ये 1, हमें क्या चाहिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए, लेकिन होल नंबर रेशियो नहीं है, वापस एक फ्रैक्शन में लिखना है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 2.5 को मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करते हो 2 से तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फैक्टर है 2 जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपलेस्ट रेशियो को। तो 1 into 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2.5 into 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर है। अभी रेशियो क्या आ गया आपका 2:5। तो कंपाउंड में दो ही एलिमेंट है, एक है नाइट्रोजन दूसरा है ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन है, ओके, और उसका रेशियो क्या मिला है आपको 2:5 मिला है, 2:5 रेशियो मिला है, बराबर है। तो इस 2:5 रेशियो को हम क्या करेंगे लिखेंगे एज ए एम्पिरिकल फार्मूला। नाइट्रोजन का क्वांटिटी कितना है 2 है, तो ये नीचे आ जाएगा सिंबल के नीचे, नाइट्रोजन का सिंबल n है तो n के नीचे सब्स्क्रिप्ट करके हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। और ऑक्सीजन है, और क्या है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का क्वांटिटी कितना है रेशियो में 5 है, ओके 5 ऑक्सीजन एटम है। तो इसको क्या करेंगे 5 को हम सब्स्क्रिप्ट करके लिखेंगे N2O5। दिस इज व्हाट दिस इज द empirical formula for oxide of nitrogen contains 25.94% of nitrogen and 74.06% of oxygen। तो ऐसे हमें कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए मैं और एक वीडियो बनाता हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए और एक वीडियो बनाता हूँ, और ये वीडियो जो है वो इसी वीडियो के साथ कि वेडनेसडे को ही रिलीज करूंगा मैं इसी वीडियो के साथ के, लेकिन उसके ऊपर हम गूगल मीट में डिस्कशन नहीं करेंगे कि मतलब दोनों वीडियो को लेके हम क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे जो भी वेडनेसडे का डिस्कशन होगा, ओके। तो मैं वेडनेसडे को 2 वीडियो कंटिन्यूअस डालने वाला हूँ, एक हमारे टाइम टेबल के हिसाब से ये वीडियो आएगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिनेशन का वीडियो जो है वो मैं क्या करूंगा हमारा टाइम जब गूगल मीट खत्म हो जाता है उसके बाद पे डालूंगा, ओके। उसके बाद में आपको क्या होगा वो व्यू होगा या फिर आप देख सकोगे उसको, ऐसा मैं क्या करूंगा अपलोड करूंगा। तो इसको देखो कि इसके रिलेटेड कुछ भी और प्रॉब्लम है तो हम गूगल मीट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक वीडियो बना के डालता हूँ कि दोनों वीडियो के ऊपर हम वेडनेसडे को ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो रुकते हैं।